Hi friends, we have with us today Priyanka Bhargav, who has been a student of Meritshine for a long time. We remember Priyanka as a very good, sincere, hardworking, a very bright student, but one who could never really convert her potential into success. She finally redeemed herself in IBPS PO 2019, where she scored a very healthy 51.65 in the final merit list and was allocated Punjab National Bank. So it came after a lot of struggle and it was like a dream come true. So many of you who have been experiencing the same, facing failure despite putting in your best efforts, would be able to relate to the story. So welcome you Priyanka. Please start by introducing yourself. It need not be a formal intro, just tell us a bit about yourself so that we get to know you a little better. Hello, sir. Sir, I've done my schooling from City Montessori School, Gomti Nagar, which is a big school in Lucknow. And I scored 94% marks in my class 10th board and 89% marks in class 12th. Then, since I was a science stream student, so I took so for graduation I did BTech in computer science stream, and I completed my graduation in the year 2016. And after graduation, I was not placed in any company which came to my college, and the biggest recruiter that time was TCS. So I was confused which direction should I take my career. So I was not prepared for. I was not knowing whether I should go for government job or I should go for private job or whether I should give CAT or GATE. I was completely indecisive at that time. Since I'm a single child, my parents advised me that I should go for government jobs because it is said that government jobs are more comfortable. There's little as compared to private jobs. The workload is relatively less. So I thought maybe I should give it a try to government jobs, but I gave both CAT and GATE, and that year I gave both CAT and GATE, and I was not able to score good marks in that. I also appeared for Air Force SSB that year. That was the biggest interview that I gave in 2016, and then that year ended. In 2017, I appeared for UPSC CDS exam, and in UPSC CDS exams I cleared that exam. And after clearing that exam, that gave me a confidence that I might be able to clear government exams, because CDS exams is considered a very good exam, and it's an all over India exam. You seem to be taking a lot of exams. So where did bank exams feature in your scheme of things? And how did Meritshine happen? आपने पूछा कि सीडीएस के बाद सर SBI PO का फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने उसको फिल कर दिया था बिकॉज आई फाउंड द पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड सैलरी वॉज वेरी गुड. और मेरे फादर खुद बैंकर है, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि बैंकिंग सेक्टर इज़ अ गुड जॉब. तो मैंने उसका फॉर्म डाल दिया एंड आई वॉज लुकिंग फॉर प्रिपरेटरी मटेरियल. तो मैंने बहुत सारी साइट्स एंड एप्लीकेशन सर्च की, तो ग्रेडअप पे मुझे Meritshine मिला. Meritshine में जिस तरह से वीडियोस थे, they were very the content in those videos are very unique. जिस भी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, the way of solving was very different. ऐसा मैंने पहले कभी सीखा नहीं था. तो उनको सॉल्व करते करते मुझे पता चला कि SBI Meritshine यूट्यूब पे अपना फ्री कोर्स पढ़ा रहे हैं. तो मैंने उसको पूरा देखा, एंड even though I could not clear SBI PO prelims, but I could clear IBPS PO all the 3 stages, and SSC CGL all the 3 stages, but at the last I was not able to get the final selection. So you came pretty close to cracking IBPS PO 2017 itself. You appeared for the interview but faltered at the last hurdle. That must have been a little difficult to take. Anyway, what after that? Yes sir, उसके बाद ये हुआ कि सर अप्रैल में IBPS PO का रिजल्ट आया था, तो उसके मुझे लगा कि शायद थोड़ी मेरे में कुछ कमी रह गई है. There must be some gaps in my preparation which could be plugged if I buy SBI PO paid program. तो सर मैंने अप्रैल में ही इसको एनरोल कर लिया था Meritshine के पेड प्रोग्राम में. एंड सर वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चंस हैं सर पेड प्रोग्राम में, और इतना अच्छा मटेरियल है सर. बाहर से मुझे कुछ नहीं देखना पड़ा. लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं करा था कि सिर्फ क्वेश्चंस मैं देख लूँ वीडियो में. आई यूज़ टू सॉल्व सर्वेश वर्मा एंड M. Tiera. अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे इजी लेवल के करने होते थे, तो मैं M. Tiera से करती थी. आई सॉल्व 2 बुक्स, एंड
आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आई स्टार्टेड गिविंग प्लेंटी ऑफ मॉक्स, बट ऐसा हुआ कि मेरा SBI PO का प्रीलिम्स इस बार फिर से नहीं निकला, SBI JA निकल गया था इस बार। और उसके बाद मुझे SBI PO का नहीं निकला तो थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बट आफ्टर क्लियरिंग SBI JA एग्ज़ाम आई वाज स्टिल रिलीव्ड। लेकिन SBI JA के मेंस में बैठने पे ऐसा हुआ कि मेरा जो रूम था, एग्ज़ाम रूम था, वो इतना गर्म था कि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा। I was not able to concentrate, I was not able to see what was there in the question paper, and the question paper became blurry. तो मेरा वो पेपर ख़राब हो गया, मेरा वो क्लियर नहीं हुआ। That must have been tough, प्रियंका। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, किसी के भी कंट्रोल के बाहर होती हैं, और आपको अपनी बिना किसी गलती के सफ़र करना पड़ता है। रिमेंबर यू एज अ गुड स्टूडेंट, वन हु वाज ऑलवेज एक्टिव ऑन द ग्रुप, हेल्पिंग अदर्स, गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें कभी नहीं लगता था कि आप 2018 में ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। सर इसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि सर जब मैंने लास्ट ईयर IBPS PO और SSC सीजन निकाल लिया था तो मुझे लगता था कि एग्ज़ाम्स निकालना इतना टफ नहीं है, लेकिन जब उसका रिजल्ट फाइनली ये हुआ कि मैं क्लियर कुछ भी नहीं कर पाई तो मुझे लगने अपने ऊपर डाउट होने लगा। आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ। मुझे अपने प्रिपरेशन पे डाउट होने लगा। आई वुड हैव स्लीपलेस नाइट्स, आई वुड बी वेरी एंशियस अबाउट द रिजल्ट्स। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के सोचती थी कि ये वाला मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊँगी कि नहीं। मैं SBI PO के एग्ज़ाम में सर मैं रात में सो नहीं पाई थी। मैं अगले दिन उठी तो माई माइंड वॉज नॉट फ्रेश, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन आप कहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में जब जाना है तो एकदम फेयरलेस जाना है, जब क्रिकेट में भी कोई जाता है तो एकदम फेयरलेस होके जाते हैं, तो सर ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं पा रहा था। मैं पूरे टाइम सोचती रहती थी कि शायद ये वाला एग्ज़ाम भी इस स्टेज पे पहुंच गया, शायद अब ये एग्ज़ाम फिर नहीं निकलेगा। तो ऑल नेगेटिव थॉट्स कीप ऑन कमिंग इन माई माइंड। नेगेटिव थॉट्स और एग्जाम में सक्सेस, इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा है। दे डू नॉट शेयर अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। आई एम श्योर ये फेज़ आपके लिए काफ़ी टफ था। एनीवे, क्या किया उसके बाद में? हाउ वाज इट आफ्टर दैट? हाउ डिड IBPS PO 2018 गो? IBPS में ये हुआ कि IBPS का भी मेरा प्रीलिम ही निकल पाया सर। मेंस के टाइम सर सेम प्रॉब्लम हो गई। मैं बहुत ज़्यादा एंशियस थी एग्ज़ाम में, और सर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी। मैं जिस काम माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ वो उस टाइम मेरे डेवलप ही नहीं हो पा रहा था मेंस के पेपर में। एंड सर क्लर्क में ऐसा हुआ कि मेरा तो क्लर्क का पेपर ही मैं दे नहीं पाई बिकॉज आई कुड नॉट रीच द एग्ज़ाम सेंटर बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल रैली। मैं 1 घंटा लेट हो गई एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने में। आई कुड नॉट इवन एंटर द एग्ज़ाम सेंटर। उसके बाद सर जब ये सब हो गया तो मुझे लगा कि शायद मुझे बैंकिंग सेक्टर में मेरा कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं रहा है किसी भी एग्ज़ाम में। तो मैं ये सोच के सर मैंने डिफेंस के एग्ज़ाम्स देने लगी। मैं डिफेंस के 3 SSPs मैंने अटेंड करे उस साल बैक टू बैक। एंड उन SSPs में भी मैं जाके ये सोचती थी कि आगे क्या होने वाला है, मेरा कोई एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मेरा माइंडसेट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट मेड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। माइंडसेट मेरा गलत था। अगर वो सही होता तो मेरे पहले एग्ज़ाम निकल जाते। और कुछ चीज़ें सर उस समय कुछ चीज़ें द स्टार्स वर नॉट इन माई फेवर, तो चीज़ें सही नहीं हो रही थी सर। तो 2018 इस तरह से एंड हो गया। 2018 डेफिनेटली वाज अ बैड ईयर फॉर यू। 2017 IBPS में आप इंटरव्यू तक गए, 18 में आपका मेंस ही क्लियर नहीं हो पाया। यू हैड टू मिस द क्लर्क एग्जाम बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट फ्रीक इवेंट। ऐसा भी कई बार हो जाता है। बट आखिर प्रियंका प्रॉब्लम क्या थी? जितना भी मैंने आपको देखा है, जितना भी मैंने आपको ग्रुप पे ऑब्जर्व किया, आई नेवर फेल्ट that you do not know how to attempt quant reasoning or English problems. No, it was not that. It was something beyond that. मेरे केस में सर मुझे अभी तक लगता है कि मेरे लिए मेंटल ब्लॉक था सर। मैं इस चीज़ को ओवरकम ही नहीं कर पाई थी कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। मेरे को हमेशा लगता था कि शायद मेरी कमी में, मेरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़े से गैप्स रह रहे हैं जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। मुझे कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता था मेरी तैयारी फुल है कि इस एग्ज़ाम के लिए मेरी प्रिपरेशन इज़ कम्प्लीट, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगी। ये तो बहुत ही ख़राब मेंटल स्टेट है। आपने कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर रखा हो, ऐसी मेंटल स्टेट में एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाना इम्पॉसिबल होगा। यू आर क्लियरली नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। इसके बाद आपने क्या किया? कैसे अपने आप को वापस से पढ़ने के लिए मोटिवेट किया? उस टाइम ऐसा हुआ था कि जब IBPS PO का मेंस नहीं निकला था तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में थी, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं सही तरह से पढ़ भी रही हूँ कि नहीं। ऐसा भी होता है प्रिपरेशन में कि आपको लगने लगता है कि आप शायद सही तरह से पढ़ ही नहीं रहे हैं जैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि अब पढ़ना तो है ही, पढ़ने का कोई
बेसिक स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस उसको स्टार्ट करना है। तो आई स्टार्टेड विद सर्वेश वर्मा। मैंने एक एक चैप्टर फिर से उठाया और जो एक्सरसाइजेस मैंने नहीं लगाई थी वो मैंने सारी लगाई। उसके बाद मैंने मॉक्स देना स्टार्ट करे, मेरे मॉक्स से मार्क्स इम्प्रूव होने लगे। तो मैंने पढ़ाई कभी भी छोड़ी नहीं थी, आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट। मैं क्योंकि मैं मानती थी कि एक ना एक दिन तो अपना टाइम आएगा, तो सर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ाई करती रहूँ और मेरा एक दिन सिलेक्शन हो जाए। गुड, दैट्स द स्पिरिट। उम्मीद पे दुनिया कायम है। 2018 डेफिनेटली आपके लिए बहुत ख़राब था। 2019 के बारे में बताइए। 2019 में जब ईयर स्टार्ट हुआ तभी से मैंने सोच लिया था कि ये मेरा लास्ट ईयर होगा प्रिपरेशन में। इससे ज़्यादा मैं टाइम डिवोट नहीं करूँगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, और जितना मैं डिवोट करूँगी वो मेरा 100% होगा, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती उसके लिए। तो ये मैंने अपना एक फर्म रिजॉल्व था मेरी तरफ से कि ये मैं ऐसे ही पूरे साल प्रिपरेशन करती रहूँगी। और इससे ये हुआ कि पहले मेरा एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो क्लियर हो गया विद अ गुड स्कोर, 80% स्कोर इन दैट एग्ज़ाम। पर उसमें ये ऐसा होता है कि टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग में आई फंबल्ड। उस समय मुझे लगा कि शायद मैं टाइपिंग कर ही नहीं सकती, तो वो मेरा एग्ज़ाम वो भी नहीं निकला। इट वॉज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम। पहली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। सेकंड अपॉर्चुनिटी आई SBI PO एग्ज़ाम की। SBI PO में भी मैंने सोचा था कि कैसे भी करके इस साल निकालना ही है, तो उसी एटीट्यूड के साथ मैं गई थी। पर ऐसा हुआ कि मेंस क्लियर हो गया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। इंटरव्यू में आई वॉज अगेन वेरी एंक्शियस, आई वॉज अगेन वेरी नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो उसमें भी मेरा इंटरव्यू और जो क्वेश्चंस पूछे गए वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे। तो वो क्वेश्चंस मैं ढंग से आंसर नहीं कर पाई, तो मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ, जिस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली क्रेस्ट फॉलन, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे लग रहा था कि अब शायद ये आखिरी था, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती, इससे ज़्यादा आगे मैं मूव नहीं कर सकती। ये मैंने सब कुछ दे दिया था इस प्रिपरेशन के लिए। 2019 started a little better, but you still could not get over the line. कुछ कामयाबी मिली आपको, बट फिर भी आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, ख़त्म नहीं कर पाए। तो आई एम श्योर इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट। इस सब के बाद आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, फिर क्या किया आपने? सर ये SBI PO के बाद आई वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड, आई वॉज क्रेस्ट फॉलन। उस समय आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं पूरी होपलेस हो चुकी थी, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था कि मैं रिजॉल्व करूंगी तो मुझे सक्सेस मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उस टाइम पे जब उसका रिज़ल्ट आया था तो उसके नेक्स्ट डे IBPS PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, और मैं IBPS PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसको भी क्लियर कर पाऊँगी, क्योंकि जो मेरा माइंड फ्रेम था उस टाइम पे। देन माई बेस्ट फ्रेंड गॉट selected as SBI PO. She counseled me a lot that day कि जो एग्ज़ाम देना है वो मुझे अच्छे से देना है और मुझे वहाँ पे अपना 100% परफॉर्म करना है। इस बात को सुन के मैं एग्ज़ाम तो दे के आई, फिर मुझे लगा अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। इफ़ शी कैन क्लियर द एग्ज़ाम सो कैन आई। वो मुझसे बहुत डिफरेंट नहीं है। और सेकंड चीज़ ये हुई कि मुझे एक बुक रिकमेंड करी मेरी सिस्टर ने, which is Hope is a Decision, written by a peace builder and educator Daisaku Ikeda. And this book changed my complete outlook towards life. इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा IBPS PO प्रीलिम्स निकल गया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मैं पॉजिटिव सोचने लगी, इस बुक को पढ़ने के बाद सारी चीज़ें पॉजिटिव सोचने लगी। एंड क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम गेव मी इमेंस होप। मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि अगर मैंने PO प्रीलिम्स क्लियर किया है तो मुझे इसको फाइनली कन्वर्ट करना है विक्ट्री में। ये नहीं रह सकता अब, इसको मुझे सारी स्टेजेस इसकी कैसे भी क्लियर करनी है। तो हर एग्ज़ाम जब मैं इसका मेंस देने गई या मैं इंटरव्यू देने गई तो मैं ये सोच के निकलती थी कि जब मैं इसको बाहर आऊँगी तो मुझे खुशी होगी एग्ज़ाम देने की। आई वोंट बी डिप्रेस्ड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर। तो सर इसमें एक चीज़ ऐसी थी कि इवन इफ़ द होप इज़ डिस्टेंट, कि कहीं होप नहीं दिख रही है, इवन क्लिंग ऑन टू दैट होप। वो मेरे लिए IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करना था, वो मेरे लिए होप थी सर सबसे बड़ी। उसके बाद सर वो जो डिटर्मिनेशन अंदर से आया, दैट केप्ट फैनिंग माई डिज़ायर टू बी विक्टोरियस। वो मुझे लगातार मोटिवेट करता रहा कि जब तक सक्सेस नहीं मिलते तब तक मैं रुक नहीं सकती।
and so that's why I kept on going, and finally the result was positive and I got selected as a PO in Punjab National Bank. That smile on your face, the grin, that says it all. And you clear it with a very healthy margin. Probably was just in your head all the time. अच्छा बताइए, कुछ आपने स्पेशल सोर्सेज, कोई मैजिकल सोर्सेज यूज़ किए थे? क्या स्पेशल किया था इस बार आपने, जो आपने इतने अच्छे मार्जिन साथ क्लियर किया? वैसे आप प्रीलिम्स में कभी अटक जाते थे, कभी कहीं अटक जाते थे, क्या फ़र्क था इस बार? सब्जेक्ट्स के लिए कुछ स्पेशल मदद ली आपने कहीं से? सब्जेक्ट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करी थी। ये जो सेल्फ बिलीफ मेरा ख़त्म हो गया था सर, उसी को रिवाइव करने के लिए प्रोसेस था पूरा, क्योंकि प्रिपरेशन तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी सर। 3 इयर्स में 2-3 इयर्स में मेरी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट थी, जिसका मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है। और इस बुक को पढ़ने के बाद और अपनी फ्रेंड्स से इंस्पिरेशन लेने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। तो सर ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जिसने मेरे को फाइनली सिलेक्ट करवा दिया। तो ऐसी कोई जादुई ताकत, ऐसे कोई जादुई सोर्सेज नहीं थे, सिर्फ एक न्यू फाउंड सेल्फ बिलीफ था, जो हाँ अपने आप में ही किसी जादुई ताकत से कम नहीं होता। प्रिपरेशन तो शायद आपकी हमेशा से ही अच्छी थी। चलिए प्रिपरेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। आप हमें थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, आपने क्या किया, कैसे किया? मैथ्स से स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ्स के लिए मैंने ऐसा करा था कि मैंने प्रिपरेशन ही बैंकिंग एग्ज़ाम्स की मेरिट शाइन के वीडियोस देख के करी थी, जो यूट्यूब पे थे, उस टाइम फ्री कोर्स था। और उसमें सर यू केप्ट ऑन रिमाइंडिंग अस टू इंस्टॉल मैथ्स ऐप, एंड मैथ्स ऐप एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट इन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, क्योंकि उस समय बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, और उसमें जो रेसिप्रोकल्स एंड फ्रैक्शंस उसमें जो दिए होते हैं वो बहुत हैंडी होता है एग्ज़ाम्स में। तो मेरे को मैथ्स ऐप का बहुत बेनिफिशियल लगी। एंड उसके बाद सर मैंने SBI PO का पेड प्रोग्राम लिया था 2018 में, और उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जिसको करने के बाद बाहर से क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने सर्वेश वर्मा और M.T. Arora बुक लगाई थी, और उसके सिर्फ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। आई नेवर यूज टू लुक एट द सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशंस तो बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आई यूज टू सॉल्व एज एलिगेंटली एज सर टोल्ड अस इन द वीडियोज़। तो उसको मैंने इस तरह से सॉल्व करा। और आयरनी की बात यह है कि जब मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी 2018 में 17 में, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब 2019 आया, जब मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन मेंटली आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जितने मैं एक्सपेक्ट करती थी कि मेंस में मेरे मार्क्स आ सकते हैं। ऐसा हो जाता है प्रियंका, आपकी जर्नी कोई बहुत स्मूथ नहीं रही, बट आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस करा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होता है, बट जैसे कि शेक्सपियर जी ने कहा है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। चलिए अब हमें अपनी रीजनिंग के प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर रीजनिंग के लिए तो मैंने मेरे शाइन की प्लेलिस्ट ही देखी थी पजल्स के लिए, सबसे पहले जो 2017 में थी। उसके बाद सर मैंने SBI PO की प्लेलिस्ट में सर सारे मिसलेनियस टॉपिक्स करे थे, जो कि डायरेक्शन सेंस है सर, सिलॉजिज्म है, एंड ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सारे सर मैंने मेरिट शाइन के वीडियो से ही सब कुछ सीखा है। उसके बाद सर मैं एम्पल प्रैक्टिस करती थी, ताकि वो चीज़ मेरी ग्रिप में रहे। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगूँ तो मुझे सोचना ना पड़े कि मैंने क्या पढ़ा था। और उसके बाद सर बहुत अच्छी पजल्स पेड प्रोग्राम में, बहुत ही क्वालिटी ऑफ पजल्स है, बहुत ज़्यादा पजल्स नहीं है, कुछ पजल्स है लेकिन बहुत क्वालिटी है उनमें। तो उनको एक बार खुद सॉल्व करने के बाद वीडियो देखने पे बहुत चीज़ें समझ आती हैं सर, कैसे डेवलप करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग, माइंडसेट कैसे डेवलप करना है पजल्स को सॉल्व करने के लिए। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। लेकिन इस बार ये हुआ कि जब मैंने मेंस का पेपर देने के लिए गई थी, तो पजल्स तो एज़ यूजुअल काफ़ी टफ होती है, तो बहुत सारी पजल्स नहीं कर सकते हैं। बट मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा इग्नोर कर दिया। आई शुड हैव फोकस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, जो स्कोरिंग है। तो उस वजह से मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए क्रिटिकल रीजनिंग को साइडलाइन करने की वजह से, वन आई कुड हैव स्कोर्ड इवन मोर मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन। क्रिटिकल रीजनिंग को इग्नोर करना वॉज डेफिनेटली अ मिस्टेक। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, मिसलेनियस टॉपिक्स एंड पजल्स। एनीवे, जो हो गया वो हो गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे ज़्यादा। हमें अपनी इंग्लिश के प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप नेचुरली इंग्लिश में कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे? आपने क्या रिसोर्सेज यूज़ करे? आप किस पे ज़्यादा फोकस करते थे? रीडिंग पे, ग्रामर पे, सब कुछ बताइए थोड़ा हमें। ये सर इंग्लिश में सर मेरा ऑलरेडी ICSE बैकग्राउंड था, तो इंग्लिश वॉज नॉट अ चैलेंज फॉर मी। और मैंने उसके बाद प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी बैंकिंग की, तो मैंने रत्नावा सर की प्रीलिस्ट देखी थी ग्रामर के लिए, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए। एंड आई ऑल्सो यूज टू टीच क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ ICSE बोर्ड, तो उससे मुझे और उससे अलग एडवांटेज मिला कि मुझे हमेशा कॉन्सेप्ट्स याद रहते थे।
तो जब भी मैं मॉक्स देती थी तो मुझे कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती थी, और इनफैक्ट जब कोई क्वेश्चन ऐसा लगता भी था कि जो मुझे आगे रेफ़र करना पड़ेगा, तो मैं उसको नोट कर लेती थी। फिर वोकैब के लिए सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मुझे अच्छा भी लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना। और उसके अलावा सर नॉर्मन लुइस आपने बताई थी, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, तो सर उसको मैं रेफ़र करती थी। एंड रत्नाभा सर के फाइवर जो मैरिज शाइन ऐप पे है, उसको मैं अटेम्प्ट करती हूँ उसके क्विजेस। तो सर से मेरी इंग्लिश और इम्प्रूव हो गई। इस तरह से सर प्रैक्टिस उससे इंग्लिश इम्प्रूव होती जाती है सर। यस, प्रैक्टिस इज़ द की। और आई एम श्योर फाइवर ने आपको वोकेबलरी इंप्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प की होगी। अब डिस्क्रिप्टिव के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, जबकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो लोग इग्नोर करते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। आपकी इंग्लिश अच्छी थी, आपने फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या किया, कुछ अलग से किया? सर डिस्क्रिप्टिव के लिए तो मैंने सबसे पहले मेरिशाइन का वीडियोस ही देखे थे। रत्नाभा सर के वीडियोस थे लेटर राइटिंग पे, ऐसे राइटिंग पे, प्रेसी राइटिंग पे, तो मैंने तीनों ही देखे थे। उसमें आईपीसी रूल फॉलो किया था कॉम्पोजिशन में। लेकिन ऐसा हुआ एग्ज़ाम के टाइम पे 2017 में मेरे 23 आए थे 25 में, लेकिन 2019 के एग्ज़ाम में मेरे से एक ब्लंडर हो गया। मैंने वर्ड लिमिट नहीं देखी कि ऐसे और लेटर में वर्ड लिमिट क्या है। तो इन ऐसे आई वॉज फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड लिमिट। मैंने 150 वर्ड्स का ऐसे लिखा, एंड इन लेटर राइटिंग आई एक्सीडेड द वर्ड लिमिट। तो इसको रिस्पेक्ट ना करने की वजह से मेरे मार्क्स नेगेटिव में चले गए। आई गॉट 12.5 मार्क्स आउट ऑफ 25। तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, क्योंकि मेरी फॉल्ट थी। अगर मैंने उस वहाँ पे वर्ड लिमिट देखी होते तो मेरे और अच्छे मार्क्स आए होते। दैट वॉज डेफिनेटली अ ब्लंडर। इस बार आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे बाकी जगह पर, बट सम अदर एग्जाम, सम अदर डे, इट कुड हैव कॉस्ट यू डियर। देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस, समथिंग लर्न फॉर एवरीबडी। फॉर यू कभी रिपीट नहीं करना है ऐसा कुछ। बाकी सब लोग के लिए इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। एनीवे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट हमारी लर्निंग है कि हमेशा इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में। अच्छा, अब अपनी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने कैसे तैयार किया था, क्या तैयार किया था? जनरल अवेयरनेस का सर ऐसा था कि 2016 से सर मैं स्टडी IQ के वीडियोस फॉलो करती आ रही हूँ। एंड सर उस टाइम 2017 में भी इनफैक्ट मेरिट के कोई करंट अफेयर्स के या फाइनेंशियल अवेयरनेस के उतने वीडियोस नहीं थे। तो मैं जिस चीज़ को फॉलो करती आ रही हूँ सर, मैं उसी को रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, मैं उससे डेविएट नहीं होती हूँ। तो और उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने स्टडी IQ एंड GK टुडे, इन दोनों को बहुत अच्छे से फॉलो किया। एंड आई यूज टू रिपीट द वीडियोस, आई यूज टू वॉच इट 2-3 टाइम्स, ताकि वो चीज़ बैठ जाए दिमाग में। एंड आई ऑल्सो यूज टू मेक नोट्स, सो फॉर हैंडी रिविजन एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जाम और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो सर इस तरह से प्रिपेयर करा। ठीक है। हाँ, हम लोगों ने अपने जनरल अवेयरनेस के डेली क्विजेस 2018 के बाद में ही देने स्टार्ट किए थे। अच्छा, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में बताइए, उसके लिए आपने क्या किया था? सर इंटरव्यू के लिए ऐसा था कि मेरिट शाइन ने कुछ PDFs अपलोड करे थे मेरिट शाइन ग्रुप पर। तो उसमें Q&A वाले जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे सर, उसको मैंने अपने वर्ड्स में अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिए थे, और उसको मैं रिवाइज कर लेती थी, और जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको फॉलो करते हुए मैंने उस PDF को पढ़ा था। और सेम बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी PDF था, वो भी मैंने देखा था। और यूट्यूब के वीडियोस भी आपने अपलोड करे थे उस टाइम पे, SBIPO के टाइम पे। सो आई वॉच्ड ऑल ऑफ देम एंड आई गेन्ड अ लॉट ऑफ इंसाइट थ्रू दोज वीडियोस, कि कैसे इंटरव्यू में फेस कैसे करना होता है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है। एंड उसके बाद सर ये सब चीज़ों को करने के बाद सर मैं पेपर रोज़ पढ़ती थी। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, क्योंकि कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ करंट अफेयर से कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो हेडलाइंस तो मिस नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट एडिटोरियल्स भी पढ़ने चाहिए, ताकि आप एक पर्सपेक्टिव बन जाए जब ग्रुप डिस्कशन होता है। तो सर इस तरह से आई प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। ओके, तो आप फिर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे इंटरव्यू के लिए। प्रियंका, अगर हम इस फेज़ को देखें, आपकी इस जर्नी को देखें, सो 2016 में यू ग्रेजुएटेड, उसके बाद में आप 2020 में आपको ये जॉब मिली है, विच इज़ अ गुड जॉब। तो यू मस्ट हैव गॉट योर कॉन्फिडेंस बैक, दैट मस्ट हैव बीन अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर। बट अगर इस पूरे स्ट्रगल को देखें तो आपकी जर्नी बहुत लंबी हो गई। हाँ, सो कैसा था ये फेज़ आपके लिए? सर हाँ, बहुत लॉन्ग जर्नी हो गई सर, 4 इयर्स की जर्नी हो गई। बहुत टाइम ऐसे आता था कि जब मुझे लगता था कि आई शुड गिव अप, मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मुझे अब सरेंडर कर देना चाहिए, आगे पता नहीं फ्यूचर में क्या है, कभी होगा नहीं होगा। पर फिर भी एक अंदर से आवाज़ आती थी कि आई शुड कीप ऑन गोइंग, मे बी अभी नहीं है तो थोड़े टाइम बाद, लेकिन सक्सेस मिलेगी ज़रूर। तो दिस डिटर्मिनेशन फैंड माई डिज़ायर टू कीप ऑन गोइंग।
मैं आई केप्ट ऑन परसिवियरिंग, आई केप्ट ऑन डूइंग हार्ड वर्क. फिर फाइनली सर IBPS PO निकल गया. बस एक दिन लगता है सर. एक दिन पहले सर मैं अनएम्प्लॉयड थी और उसके नेक्स्ट दिन आई एम एम्प्लॉयड. तो सर एक दिन से ये होता है कि आपकी पूरी डेस्टिनी चेंज हो जाती है. तो इस होप के साथ आप लोगों को आगे बढ़ते जाना चाहिए, किसी को भी आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि व्हाट इज़ देयर इन स्टोर फॉर अस. डेफिनेटली. बस एक ही दिन चाहिए होता है सब कुछ बदलने के लिए. एक ही दिन में स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है. यू फेस टफ टाइम्स बट यू नेवर गिव अप एंड इट हैड टू पे ऑफ इन द एंड. इट पेड ऑफ. वेरी वेल डन. यू आर प्राउड ऑफ यू. कीप इट अप. अब क्या प्लान है प्रियंका जी? क्या कर रहे हो? कुछ पढ़ रहे हो आगे के लिए? सर अभी तो सर मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी एक्सटैटिक कि इतने टाइम बाद कोई बहुत बड़ा जॉब मुझे मिला है. तो आई एम दिस विक्ट्री इज़ टेकिंग टाइम टू सीप इन. लेकिन उसके बाद मैं आगे CGL एंड RBI ये मेरे रडार पे हैं, तो इनको मैं ज़रूर सीरियसली देना चाहती हूँ. CGL का तो मेरा एक जो फर्स्ट ईयर है वो क्लियर ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड स्कोर. और RBI के लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहती हूँ अभी से. और सर अभी यही है. ठीक है. यू डिजर्व दैट खुशी, दैट एक्सटेसी एंड इवन अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम स्टडीज. यू हैव अर्नड ऑल ऑफ इट. Priyanka, any final thoughts, any final words of wisdom for our students? Yes, sir. Advice है, I definitely want to advise. I would love to advise. और ये मेरा उसी बुक से है जिसको मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था, which has become a part of my life. तो उसका quotation है, when we change our inner determination, everything begins to move in a new direction. The moment we make a powerful resolve, every nerve and tissue of our body will immediately orient itself towards the fulfillment of the goal we desire. On the other hand, if we think this is never going to happen, then every cell in our body will be deflated and give up the fight. So always be hopeful and be optimist and never give up nor give in. Here I mean never surrender nor be overpowered by defeat, and I'm very sure that one day you all will be able to achieve your goals. Wonderful. Paulo Coelho has said, if you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Even हमारे शाहरुख खान ने भी ऐसे ही कुछ कहा था ओम शांति ओम में. जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. It's so true. Priyanka, you've done it after a lot of struggle. You shared your story with us. You gave us a lot of time. I'm sure this is going to inspire a lot of students who are sailing in the same boat. And you have been a fighter, so keep fighting. Wish you all the best for your CGL and RBI exams. And let this be the first one of a long string of successes that's supposed to come your way. All the best. Thank you, sir, and thank you, Meritshine, for all the study material and all the contribution you have done in my preparation. Thank you so much. And I'm really grateful that I could clear this exam, and I'm really blessed. I feel very proud at this moment. Thank you so much.